Good morning, students of class 4. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 55 as I'll be continuing with the exercise of Unit 14, Simple Present Tense. Students, please take out your English grammar books and turn to page number 55 as I'll be continuing with Unit 14, Simple Present Tense. Students, in my last video, I had explained how to make interrogative sentence in simple present tense. What do you mean by interrogative sentence? Interrogative sentences are questions. So, in my last video, I had explained how to frame questions in simple present tense. Fine. I hope you'll remember the two keywords do and does. With using these two words, we frame the interrogative sentence in simple present tense. And the use of do and does depends upon the subject. If the subject is plural, we use do, and if the subject is singular, we use does. Fine. Students, today I'll be starting with exercise 7, spot the error. This is a very interesting exercise. Fine. And beta, spotting the error. है ना? This kind of questions, they come in board exams also. And once you understand the simple present tense, you will be easily able to solve the exercise by spotting the error and rectifying the mistake. So, I'll be starting with exercise 7, spot the errors. This is our exercise. Now students, I want all of you to do this exercise in the notebook. So please take out your notebooks. All of you, please take out your English notebook and please do exercise 7 in your English notebook. There are 10 sentences given. Now besides these 10 sentences, I'll be giving some more sentences so that you understand this better. Now, students, spot the errors. Now, what do you mean by errors? Errors का मतलब क्या होता है? Error means mistake. There is a mistake in the sentence and you need to spot, you need to find the mistake and rewrite the sentence again correctly. आई बात बेटा समझ में? आपको सेंटेंस में एक मिस्टेक है और मिस्टेक को ढूंढना है और उस सेंटेंस को फिर से लिखना है बाय करेक्टिंग दी मिस्टेक. फाइन. अब बेटा आपके बुक में तो सेंटेंस दिया है और आगे उसके ब्लैंक दिया है. दैट मीन्स कि आप जो वर्ड है वो रॉन्ग वर्ड को आप वहां पे आप सर्कल कर दो, अंडरलाइन कर दो, करेक्ट वर्ड ब्लैंक में लिख दो. नहीं, but you should know how to write the sentence again by correcting the mistake. So I want you to do this exercise in your notebook. So all of you, please take out your English notebooks. Give the heading Unit 14, Simple Present Tense, Exercise 7, Spot the Error. Now, students, the first sentence is shopkeepers sells various items. This is the sentence. और आपके बुक में क्या दिया हुआ है? आगे डैश दिया है ताकि आप मिस्टेक पकड़ लें और जो करेक्ट वर्ड उस वर्ड की जगह आएगा उसको वहां पे लिख दें. बट इस एक्सरसाइज को हम अपनी नोटबुक में करेंगे. वील बी राइटिंग दिस सेंटेंस अगेन इन दी यूजिंग द करेक्ट वर्ड. फाइन. नाउ हम कौन सा यूनिट हमने पढ़ा है अभी? सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड
सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो क्या है? इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहेगा, एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब में एस या ईएस रहेगा। ये आपको याद रखना है, और ये आपको अगर आता है तभी आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। यू एंजॉय डूइंग दिस एक्सरसाइज। फाइन। नाउ ये सेंटेंसेस, शॉपकीपर सेल्स वेरियस आइटम्स। फाइन। अब बेटा इसमें, इस सेंटेंस में मिस्टेक कहां पे है? फाइन। शॉपकीपर्स सेल्स वेरियस आइटम्स, हमारा सब्जेक्ट क्या है? शॉपकीपर्स, और शॉपकीपर्स में एस लगा है, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम वर्ब में रूट फॉर्म यूज करते हैं, उसमें एस एस नहीं रहता। अब यहाँ पे तो वर्ब में एस लगा हुआ है, शॉपकीपर सेल्स वेरियस आइटम्स। अब मिस्टेक कहाँ पे है? वर्ब में। सो द एरर इज इन द वर्ड सेल्स। व्हाई? बिकॉज हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, हमारा जो वर्ब होता है उसमें एस नहीं आता है, वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में लिखते हैं। तो करेक्ट वर्ड क्या आएगा बेटा? सेल है। अब हम क्या करेंगे? विल बी राइटिंग द सेंटेंस अगेन, विल बी राइटिंग द करेक्ट सेंटेंस। सेम सेंटेंस लिखना है, वर्ब को ठीक करके लिखना है। फाइन। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? Shopkeepers sell various items. और हमने कौन सा वर्ड ठीक किया? सेल। सो वी अंडरलाइन सो दैट ये हमको पता लगे कि हमने कौन सा वर्ड को चेंज करके करेक्ट करके लिखा है। फाइन। सो सेंटेंस क्या था? शॉपकीपर सेल्स वेरियस आइटम। इसमें मिस्टेक कहाँ पे थी? वर्ब में थी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था, इसलिए हमें याद रखना है कि हमारा जो वर्ब है रूट फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने इसका करेक्ट सेंटेंस लिखा, हमने शॉपकीपर्स, क्योंकि प्लूरल है, वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में आएगा, उसमें एस एस नहीं लगेगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? शॉपकीपर्स सेल वेरियस आइटम्स। आई होप all of you have understood this. Now please write this correct sentence in your notebook. First write the incorrect sentence, make a circle on the error which you have spotted in the sentence, then rewrite the sentence in the correct this thing and using the correct form of verb. Fine. So all of you please write this, and after doing this please draw a parting line. Fine. So I hope सबको ये फर्स्ट वाला जो है समझ में आ गया। नाउ द सेकेंड वन, दे does not celebrate Easter. Now, our sentences, they does not celebrate Easter. Now we need to find the error. Error means mistake in the sentence. They does not celebrate Easter. इसमें बेटा mistake कहाँ पे है हमको ढूंढनी है। Now first of all we need to look at the subject, है ना? Subject के हिसाब से हमारा verb होगा। अब यहाँ पे subject क्या है? they है, तो दे के साथ तो हम हमेशा डू यूज करते हैं, है ना? डस किसके साथ यूज होता है? इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, ही शी इट। लेकिन हम वी के साथ, यू के साथ, आई के साथ, दे के साथ, एंड प्लूरल नाउन्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू। तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे है? इन द वर्ड दैट इज डस। फाइन। तो डस की जगह हम करेक्ट वर्ड क्या लिखेंगे बेटा? डू। So, the correct sentence will be,
they do not celebrate Easter. This is the correct sentence. और मिस्टेक कहाँ पे है बेटा? वर्ब में. मिस्टेक वर्ब में ही है. They do not celebrate Easter. Remember, with plural nouns I, you, they, we, हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करते हैं. ये जो वर्ब में एस एंड एस कब लगाते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट. फाइन. तो ये आप याद रखिएगा. सो द करेक्ट सेंटेंस इज they do not celebrate Easter. Students, please write this in your English notebook. पहले आप incorrect लिखिए, error पे circle बनाइए, and then I want you to write the correct sentence. Fine. I hope all of you have written both the sentence, students, और दोनों sentence आपको समझ में भी आ गए हैं. Now, I'm going to erase this and write the third one. The third sentence. I hope you're enjoying this. This exercise is more like a game. आपको गेम में जैसे कुछ ढूंढना होता है, same way you need to find the mistake in the sentence and solve the. Now students, our third sentence is he does not gets up early in the morning. He does not gets up early in the morning. This is our sentence, and now we need to find the error in this sentence. He does not gets up early in the morning. Fine. Now, over here children, our subject is he. हमारा जो subject है वो क्या है बेटा? he है हमारा subject. और he के साथ हम हमेशा क्या करते हैं? he does not gets up early in the morning, है ना? तो हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट हमारा ही है, और ये जो सेंटेंस है किसमें है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस है. और नेगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में. फाइन. सो अभी यहाँ पे वर्ब क्या है? ही डज नॉट. मिस्टेक कहाँ पे है? गेट्स में. क्योंकि ही डज नॉट लगा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, और नेगेटिव में हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. तो गेट्स की जगह रूट फॉर्म एस हटा देंगे तो रूट फॉर्म क्या हो जाएगा? गेट. फाइन. सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी he does not get up early in the morning. Fine. He does not get up early in the morning. Remember children, negative sentence में हम हमेशा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. सेकेंड वाले में भी दे डू नॉट सेलिब्रेट ईस्टर, उसमें भी हमको वो लगाना था. यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हमको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम डज नॉट यूज करते हैं और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. फाइन. सो नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका
कोई भी आप नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो आपका जो टेंस है वो हमेशा वर्ब जो है रूट फॉर्म में ही रहेगा. फाइन. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहेगा इन नेगेटिव सेंटेंस. और नॉट लगा है सेंटेंस में, ये इंडिकेट कर रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए गेट्स कैसे आएगा, यहाँ पे तो गेट आएगा. फाइन. सो ही डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. Draw a parting line with a scale and pencil in your notebook, children. Now the fourth one. Ria make fun of people. This is the sentence. Now we need to find the error in this sentence. Ria make fun of people. Subject क्या है बेटा? Ria. Verb क्या है? Make. और हम किस टेंस की बात करें? We are talking about simple present tense. तो simple present tense में जो subject verb agreement होता है उसके हिसाब से if the subject is singular, हमारा जो verb होता है उसमें s लगा होता है. तो यहाँ पे तो हमारा जो make है ये रूट फॉर्म में है, तो मिस्टेक कहाँ पे है? मेक पे. और मेक की जगह क्या आ जाएगा? मेक्स. सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी रिया मेक्स फन ऑफ पीपल. फाइन. हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? रिया मेक्स फन ऑफ पीपल. फाइन. क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एस लगेगा. और वर्ब में एस एस कब लगता है? डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग ऑफ द वर्ब. तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? रिया मेक्स फन ऑफ पीपल. फाइन. Please draw a parting line after each correct sentence. Fine. I hope all of you have written the 4 sentences of exercise 7 in your English notebook. Now I'm going to erase this, children, and write the next one. Now, the fifth one is birds flaps their wings. Now we need to find the mistake in this sentence. Our sentence is birds flaps their wing. Subject क्या है sentence में बेटा? Birds. और bird में क्या लगा हुआ है? S लगा हुआ है जो indicate कर रहा है कि हमारा subject plural है. तो simple present tense में as per the subject verb agreement क्या है कि if the subject is plural, हमारा जो verb है वो root form में है. तो हमारी mistake कहाँ पे है? इसमें तो वर्ब में तो एस लगा हुआ है, दोनों जगह एस. सब्जेक्ट और वर्ब में तो हो नहीं सकता. सो मिस्टेक कहाँ पे है? इन दी वर्ब फ्लैप. और हमको यहाँ पे फ्लैप किस में लिखना है? रूट फॉर्म में. आपको फ्लैप का मतलब पता है ना? ऐसे पंख फड़फड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लैप करना. बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स. ऐसे ऐसे करने को क्या बोलते हैं? फ्लैप. Now, the correct sentence will be birds flaps की जगह क्या हो जाएगा? Flap. Birds flap their wings.
sentence will be birds flap their wings. Remember, यहाँ भी s और यहाँ भी s नहीं होगा. अगर सब्जेक्ट में s है तो वर्ब में s नहीं आएगा. अगर सब्जेक्ट में s नहीं है तो हमको वर्ब में s लगाना है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट में s लिए, इसलिए हमने वर्ब का s रिमूव किया. ये क्यों किया? बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. फाइन. ड्रॉ अ पार्टिंग लाइन आफ्टर योर सेंटेंस. करेक्ट क्या हो गया? बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स. रिमेंबर, अगर सब्जेक्ट में s है, प्लूरल है, तो वर्ब में s नहीं आएगा. देन the 6 sentences. Does your parents drop you to school? Question mark. Now, the sentence is, does your parents drop you to school? Now, we need to find the mistake in this sentence. बेटा अभी सब इसको ध्यान से देखो. Does your parents drop you to school? ये किस टाइप का सेंटेंस है? किस टाइप का सेंटेंस है? This is an interrogative sentence. Fine. अभी एक मिनट, इसका अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हटा के सिंपल सेंटेंस लिखें तो क्या होगा, है ना? डू नॉट राइट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. आपको पहले समझना जरूरी है. योर पेरेंट्स ड्रॉप यू टू स्कूल. फाइन. ये हमारा सेंटेंस है और इसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ये, डज योर पेरेंट्स ड्रॉप यू टू स्कूल. अब हमें इसमें मिस्टेक ढूंढनी है, तो हम कैसे ढूंढेंगे? योर पेरेंट्स ड्रॉप यू टू स्कूल. हम जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तो हमें क्या देखना होता है? हमें डू और डज से क्वेश्चन बनाना होता है. और डू और डज का यूज हम कैसे करते हैं? हम अपना सब्जेक्ट देख के करते हैं. और यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? योर पेरेंट्स. और योर पेरेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है. तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसका क्वेश्चन किससे बनाएंगे? तब उसका करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? हम डज लेंगे कि डू लेंगे? डू लेंगे. तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे है? हमारी मिस्टेक है डज में. और डज की जगह करेक्ट वर्ड क्या आएगा? डू. फाइन. तो आपको ये देखना होगा सब्जेक्ट, कि आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप डू का और डज का यूज करेंगे. किसमें? इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. फाइन. तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा? डू your parents drop you to school? At the end, question mark. और हमने चेंज कहाँ पे किया है? डू पे किया. सो आई होप अभी आपको समझ में आया कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको डू और डज में ध्यान रखना है कि हम डज किसके साथ यूज करते हैं? इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नाउन, है ना? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही शी इट होगा, तो हम डज यूज करेंगे. वेयरएज डू हम किसके साथ लगाएंगे? जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, सब्जेक्ट वी होगा, दे होगा, यू होगा, आई होगा. तो ये आपको याद रखना है. इसके लिए आप पहले सोच के देखो कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर हम सिंपल सेंटेंस में डू डज हटा के लिखते हैं तो क्या होगा. फिर सब्जेक्ट के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि आप डू यूज करोगे कि
डज यूज करोगे। यहाँ पे सब्जेक्ट योर पेरेंट्स है तो हम प्लूरल है, तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स तो मोर देन वन है, दो पेरेंट्स है हमारे, है ना, तो हम उनके साथ क्या यूज करेंगे, डू। आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि डू और डज का जो यूज है वो किस बेसिस पे होता है, बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम डू यूज करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, प्लीज ड्रॉ अ पार्टिंग लाइन आफ्टर दिस ऑल्सो एंड देन आई erase these two sentences and write the seventh one. I hope all of you have written this, children. Now I'm going to erase this and write the seventh one. Now the seventh sentence is I don't knows him. Fine. ये हमारा सेंटेंस है और इसमें हमको एरर ढूंढना है। फाइन। अभी सबसे पहले आप ये जो डोंट वर्ड है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट। और जिन भी सेंटेंस में नॉट लगा हो दैट मीन्स कि वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, वो नेगेटिव, सॉरी ये हमारा सेंटेंस है। आई डू नॉट नोज हिम, यही हमारा सेंटेंस है। और सबसे पहले हमको क्या देखना है कि अगर हमारे सेंटेंस में डोंट लगा है, डजंट लगा है, और डोंट और डजंट दोनों ही किसके शॉर्ट फॉर्म है, डोंट डू नॉट का है और डजंट डज नॉट का है। फाइन। तो अगर नॉट लगा है सेंटेंस में तो वो इंडिकेट करता है कि हमारा सेंटेंस किस में है, नेगेटिव सेंटेंस है ना, हमारा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में। और मैंने आपको क्या समझाया है कि एज पर द रूल नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा किस में रहता है, रूट फॉर्म में रहता है। तो अब ये सेंटेंस तो हमारा नेगेटिव है और इसमें हमारे वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे है, नोज में, क्योंकि हमको ये याद रखना है कि डोंट क्या है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और नॉट लगा है, दैट मीन्स सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। तो मिस्टेक कहाँ पे है बेटा, मिस्टेक जो है हमारे वर्ब में है, क्योंकि वी मस्ट रिमेंबर कि नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में द वर्ब इज ऑलवेज रिटर्न इन इट्स रूट फॉर्म। तो नोज में से एस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, नो। फाइन। तो अब हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या होगा, I don't know him. फाइन। अब हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, I do not know him या I don't know him. You must remember कि अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तो हमेशा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में बेटा वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में रहता है। और ये आपको तब क्लियर होगा जब आप, इससे पहले मैंने जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको वीडियोस में पढ़ाए हैं, इफ यू लिसन टू मी केयरफुली, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है हमेशा रूट फॉर्म में होता है, उसमें एस ई एस नहीं लगा होता है, वेदर दी सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है, द वर्ब इज ऑलवेज रिटर्न इन दी रूट फॉर्म। यहाँ पे आई डोंट नो हिम है तो डोंट है इंडिकेट कर रहा है कि सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट लगा है ना, इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में है। तो हमें इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस है
तो हमारा जो वर्ब है हमेशा रूट फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने क्या सीखा है नेगेटिव सेंटेंस में, मैंने आपको कैसे चेंज करना सिखाया कि फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी वर्ब सो दैट इट रिमाइंड्स यू कि जब हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें याद रहे कि हमें वर्ब को रूट फॉर्म में लाना है। तो इसमें भी मिस्टेक कहाँ पे है, वर्ब में है, क्योंकि वर्ब हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में बेटा रूट फॉर्म में होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको 7 सेंटेंसेस फॉर द एरर्स के समझ में आ गए होंगे। That's all for today, students, and I'm sure all of you must have written these 7 sentences in your English notebook. The rest of the sentences I'll be continuing in my next video. Thank you, students. Have a good day ahead.